تو دیکھیں آپ کا میں ہمدرد بھی ہوں، آپ کے ساتھ بلائی بھی چاہتا ہوں، دل میں ذرا بھی ذرہ برابر، ذرہ مانتے ہو، مثقال ذرہ، اتنا بھی آپ سے نفرت نہیں۔ ہاں آپ کے عقائد، ان سے تو نفرت ہے کیونکہ وہ عقائد آپ کے وہ ملحدوں کے ہیں، ملحدوں کے۔ اب آپ دیکھ لیجئے یہ عقیدہ آپ کا کہ انت منی بے منزلت اولادی، او تسی میرا وڈا پتر ہے، بولو اب یہ انسانیت اس میں یہ لوگ جو اس طرح کے مانتا ہے ان کے، کیا ان کا بھائی واقعی پیر صاحب جمعہ تو نہیں ہے نا، جمعہ تو نہیں ہے آج۔ اعظم مرزا صاحب نے، اللہ تعالیٰ نے اعظم مرزا صاحب کو محبت میں کہا ہے اپنا بیٹا، کوئی سلبی بیٹا نہیں کہا، پہلی بات۔ دوسری بات، سب سے بڑا مذہب ہوتا ہے انسانیت۔ اگر آپ کے اندر پیر صاحب انسانیت نہیں ہے نا، تو آپ یہودی ہو جائیں، عیسائی ہو جائیں یا مسلمان رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عباسی سے میں ایک انسانیت کے ناطے بات کرتا ہوں، کرتا رہوں گا۔ عباسی آج کے 2 نمبر مولویوں سے لاکھ 1 کروڑ گنا بہتر ہے میرے حساب سے۔ آپ کا پوائنٹ آف ویو کچھ بھی ہو سکتا ہے، انسانوں کی فرق پہنتا ہے۔ تو میرے بھائی، اگر آپ انسانیت نہیں ہے تو آپ کے اندر کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی مذہب اختیار کر لیں، زیرو ہے، زیرو۔ جی بات کریں آپ۔ دیکھیں آج جمعہ نہیں ہے، آپ نے کہا یہ آپ مجھ سے ہمدردی نہیں ہے، آپ کو شفقت نہیں ہے، یہی ظاہر ہوتا ہے۔ میں آپ کو وہ بات کر رہا ہوں جو حقیقت پر مبنی ہے، آپ وہ بات کر رہے ہیں جس کا اور جو میں نے آپ سے بات کی نا، جو میں نے آپ سے بات کی ہے، وہ ایک ہزار گنا 1,000 گنا حقیقت پہ مبنی ہے۔ عباسی آج کے مولویوں سے 1 کروڑ گنا بہتر ہے، 1 کروڑ گنا سے بھی زیادہ بہتر ہے آج کے مولویوں سے۔ دیکھا 1.5 سال کی بچی کو نہیں چھوڑا، کسی مولوی نے کنڈیم کیا اس کو؟ آپ کے پاکستان میں ایک 1.5 سال کی بچی کو نہیں چھوڑا گیا، کسی مولوی نے کنڈیم نہیں کیا۔ ابھی تک کوئی مولوی نہیں آیا اپنی بندر جیسی صورت لے کر، ابھی تک ٹی وی پر نہیں آیا کنڈیم کرنے کے لیے، اور آپ نے بھی ابھی تک نہیں کیا۔ پیر صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ کنڈیم تو کریں کم از کم۔ او بٹوا رحیل بٹوا، السلام علیکم پیر صاحب۔ پیر وعلیکم صاحب میں نے ایک السلام۔ چھوٹا سا سوال کرنا ہے آپ سے۔ ہاں کیجئے۔ پیر صاحب میں نیچے بیٹھ کے نا تقریباً آدھے گھنٹے سے سن رہا تھا، تو جو ہی میں اوپر آیا ہوں تو کیا آپ کے کان بند تھے؟ پہلے آپ عباسی کی باتیں سن رہے تھے، جیسے میں نے آپ کو یاد دلانی کرائی تو آپ نے اسے نیچے پھینک دیا ہے۔ پہلے آپ بڑے مزے لے کے سن رہے تھے ان سی باتیں، یہ کیا 2 نمبری ہے؟ یہ اچھی بات نہیں پیر صاحب۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں مربی صاحب، میں اپنے روحانی بیٹے رحیل بٹوا کو کہہ کے کانے پہ چلا گیا تھا، میں نے کانا کھایا، آم لائے ہوئے تھے، لنگڑا نہیں ہے، دوسرے قسم کا آم ہے لیکن بڑے میٹھے تھے، آم کھایا، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد تھوڑا سا جس طرح میں نے ان کو کہا، انہوں نے ایک جو ہے وہ کچھ تھوڑے سے میرے لیے یہ بھی لے کر آئے کہ یہ بھی تھوڑے سے کھا لیجئے، کیا کہتے ہیں اس کو، ابھی ان کو کہا تھا تربوزہ کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ تھوڑے سے کھائے، بڑی میٹھے تھے۔ پھر جا کر ہاتھ دھو لیے۔ پھر جب میں کمرے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں میں ان سے بات نہیں کرتا، ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا۔ اسی وقت آپ نے کمرے میں آنا تھا جب میں نے یہاں اوپر آ کے بات کرنی تھی عباسی سے۔ عباسی صاحب کو مبارک دی ہے کہ ماشاءاللہ آپ تو آپ نے اپنی بات کے بھی آرام سے سن لیجیے نا، وقت آپ نے آنا تھا، پہلے کیوں نہیں آئے؟ میری بات تو سن لیجیے، آپ نے اپنی بات بتا مجھے دی۔ پتہ چل گیا آپ بھی 2 نمبری کرتے ہیں۔ اوکے، خدا حافظ۔ آپ سب انسانوں کو وہ اللہ کا پتر نہ مان لیں، وہ 2 نمبری کرتے تھے، ہر آدمی 2 نمبری نہیں کرتے۔ 2 نمبری اگر کوئی کسی نے کی ہے جس نے یہ کہا کہ میں اللہ کا وڈا پتر ہوں، یہ ہے 2 نمبری۔ ہمیں کیا 2 نمبری کرنے کی ضرورت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بات دیکھیں رحیل بٹوا، انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، یہ کہتے ہیں کون؟ مرزائی، اور اس کا مطلب نہیں جانتے۔ میں آپ سے محبت سے بات کر رہا ہوں، شفقت سے بات کر رہا ہوں، اور آپ دیکھ لیں کوئی بھی مرزائی آئے گا، ابھی یہ مربی صاحب آئے، اس نے دیکھیں کس طرح سے بات کی، 2 نمبری کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو۔ چاہتے کیا ہیں کہ کوئی پڈا ہو، کوئی ایسی بات ہو جس میں کوئی پڈے والی بات ہو، ہے کہ نہیں؟ بھئی پڈے والی بات کیوں کرتے ہو؟ نعرہ تو یہ لگاتے ہو سب سے بڑا مذہب۔ بھئی آپ لوگوں کو کوئی دین مذہب ہے نہیں، سب سے بڑا مذہب کیا؟ کوئی ہے ہی نہیں، 0/0۔ تو بڑا یا چھوٹا کیا ہوتا ہے مذہب؟ مذہب تو مذہب ہوتا ہے، بڑا اور چھوٹا کیا ہے؟
तो आपका कोई दीन मजहब नहीं। जब आप इस बात को मानते हैं कि अंत मिन्नी बे मंजिलत औलादी, तो मेरा सबसे बड़ा पुत्र है, जब ये बात अल्लाह ताला ने मोहब्बत में अज़म मिर्ज़ा साहब को कहा है, भाई सुलभी बेटा नहीं कहा, मोहब्बत में कहा है। कितनी बार समझाऊं, तुसी बोले तो नहीं हो पीर साहब, तुसी बोले तो नहीं हो। मैं 10 मरतबा बोल चुका हूँ कि अल्लाह ताला ने मोहब्बत में कहा है, तुसी बोले तो नहीं हो। कब सुन रहे हो तुसी? अल्लाह ताला कहता है कि आदम को हमने दोनों हाथों से बनाया, मान लो अल्लाह ताला के हाथ थे। अल्लाह ताला कहता है कि हमने बेहतर रिजवान में मेरा हाथ आप लोगों के हाथों के ऊपर था, मान लो अल्लाह का हाथ है। अल्लाह ताला कहते हैं मुझे अपने बाप दादा की तरह याद करो हज के मौके पर। कर लिया करें आप याद। अपने लिए तो सारी तावीलें कर लेते हैं आप, अपने लिए तो 1000 तावीलें कर लेंगे। हज़रत मिर्ज़ा साहब को अल्लाह ताला ने मोहब्बत में कह दिया, तो आप लोगों को इतनी आग लग गई है, इतना आप लोग जेलिस फील कर रहे हैं, सड़ सड़ के मर गए। 140 साल से मर रहे हैं सड़ सड़ के, अभी भी आपको सुकून नहीं मिला, अभी भी तो आप जल रहे हैं, सड़ रहे हैं। अल्लाह ताला ने अगर मोहब्बत का इज़हार किया हज़रत मिर्ज़ा साहब के साथ, पता नहीं क्या हो गया तुम्हारा पीर साहब। अकल नू हाथ मारो, लत्ता नू पार पाओ, पैरों नू पार पाओ, पैरों पे वजन डालो, की हो गया पीर साहब? देखें रहील बिटवा, आपने क्या कहा, आग लग गई, ये हो गया, कितने तल्ख बातें आपने की। मैं आपको जवाब नहीं दे रहा, मैं हकीकत पे मबनी बात कर रहा हूँ। मिर्जा जी का कहना कि अंत मिन्नी बेमंजिलत औलादी, तू मेरा वड्डा पुत्र है, झूठ है। अल्लाह का कोई पुत्र हो सकता है, वो भी वड्डा? अब छोटे छोटे अल्लाह के हाथ हो सकते हैं, 2 हाथ हैं। अल्लाह अपने बाप दादा की तरह अल्लाह को याद कर सकते हैं? बताएं मुझे। उनसे बढ़कर याद करो, उनसे बढ़कर याद करो। अल्लाह के हाथ, आपके हाथों पे अल्लाह का हाथ हो सकता है? अगर ये सब कुछ हो सकता है ना, तो फिर अल्लाह का बेटा भी हो सकता है। अगर ये सब कुछ हो सकता है, अगर ये सब कुछ हो सकता है, अल्लाह का बेटा भी हो सकता है। हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि आप लोगों का ये मुल्हिदाना दीन है कि अल्लाह का बेटा है वड्डा पुत्र। कौन है मिर्जा जी? दुनिया में एक ही बेटा, आपको तो 10 दे दिए। अगर ये तहरीर दिखा देंगे ना वड्डा पुत्र है, तो कसम खुदा की आपके हाथ पे बैत कर लूंगा मैं। आप ये तहरीर दिखा दें मुझे। बात तो सुनिए ना, अल्लाह पाक आपको तो बेटियां दें, बेटे दें दर्जन बराबर, और अपने लिए एक ही वड्डा पुत्र कादियान से चुन ले। हाँ यार, जुल्म ना करो बिटवा, जुल्म ना करो अपने साथ। एक ही पुत्र है अल्लाह पाक का, माअल्लाह सुम्मा माअल्लाह, वो है मिर्जा जी, और भी वड्डा। कमाल करते मैंने आपसे कहा ना, ये मुझे तहरीर दिखा देंगे वड्डा पुत्र है, तो मैं आपके हाथ पे बैत कर लूंगा। झूठ ना बोलें, दजल से काम ना लें पीर साहब, दजल से काम ना लें। अंत मिन्नी बिमंज़िलत औलाद, अल्लाह ताला ने तर्जुमा करो। अल्लाह ताला ने हज़रत मिर्ज़ा साहब को मोहब्बत में कहा है, बेटा अपना मोहब्बत का इज़हार किया है। आप तो जल जल के मर जाएंगे, मोहब्बत का इज़हार किया है अल्लाह ताला ने। आपको क्यों आग लग रही है, आपको क्यों मिर्ची लग रही है? अगर अल्लाह ताला से मोहब्बत का इज़हार कर दिया अल्लाह ताला ने हज़रत मिर्ज़ा साहब के साथ, आपके साथ नहीं किया, तो हमारा क्या कसूर है इसके अंदर? देखिए बिटवा, ये मिर्चें पर्चें जो आप कह रहे हैं, आप मेरे छोटे बच्चों के मानंद हैं, रूहानी तौर पर आप मेरे बेटे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा। ये मैं हकीकत पर मैं अपनी बात करूँगा। परेशान तो आप हो रहे हैं, जज्बात में आप आ रहे हैं। भाई अल्लाह का एक ही पुत्र, वो भी मिर्जा जी यकता, ये है मुल्हिद का अकीदा। अल्लाह ने मना किया इस चीज से। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू, अल्लाह 70 माओं से ज्यादा क्यों प्यार कर रहा है? अल्लाह ताला 70 माए भी बन गया, अल्लाह 70 माओं की तरह प्यार कर रहा है। अपने लिए तो 1000 तावीलें कर लेंगे पीर साहब, अपने लिए 1000 तावील कर लेंगे, ये अच्छा है पीर साहब। अपने लिए 1000 तावीलें कर लेंगे। अगर मिर्जा साहब के साथ अल्लाह ताला ने मोहब्बत का इज़हार कर लिया, तो आपको इतनी, अभी मैं क्या कहूँ आपको, पैरों पे वजन डाले, लत्ता दे पार पाओ पीर साहब। जी का अल्लाह से कोई तल्लक नहीं था, कोई भी तल्लक नहीं था, जरा भी तल्लक नहीं था। यकीन करें, कुरान गवाह है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुतहरा इस चीज़ के गवाह हैं कि मिर्जा जी का कोई तल्लक नहीं था अल्लाह से। अल्लाह का बेटा भी बना दिया, वो भी वड्डा। बल्कि इससे बढ़कर यह है कि अल्लाह भी बन गया एक टाइम पर आकर। जाहिर बात है, वड्डा पुत्र है, वड्डा पुत्र जो है। आप मुझे सबसे पहले ये इबारत दिखाएंगे। अगर इबारत नहीं दिखा सके तो बहुत बड़ा आपको अच्छी बात नहीं है पीर साहब, या इबारत दिखाएं, आगे बात नहीं होगी, पहले इबारत दिखाएं। वड्डा पुत्र कहाँ लिखा है हज़रत मिर्ज़ा साहब ने? ये मुझे इबारत दिखाएं, अंत मिन्नी बिमंज़िलत इबारत दिखाएं। इबारत अंत मिन्नी अंत मुन्नी को छोड़ दें, इबारत दिखा दें। तुसी सड्डा वड्डा पुत्र है, एक यकता। इबारत दिखा दें, इबारत दिखाएं। हाँ, वो जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है अल्लाह आपसे, जरा वो भी उसके लिए भी मानने को तैयार हो जाए ना कि माँ, अल्लाह ताला माँ भी बन गया वहाँ पर, 70 माओं से ज्यादा प्यार भी कर रहा है इंसानों से।
نہیں اسی ایسے۔ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب کو اسی طریقے سے پیار کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب کو، جیسے عام انسانوں سے 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے محبت کا اظہار کیا حضرت مرزا 70 صاحب ماہوں والی سے۔ بات اب تھوڑی نہیں ہے۔ کھوٹی عقل میں نہیں آ رہا تو ہمارا کیا قصور ہے؟ 70 ماہوں والی بات ہاں، نہیں یہ بات ہے، بھی نہیں ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں، یہ بات بھی نہیں ہے، یہ تو مرزا جی یہ کا بات بھی کہنا نہیں جو ہے۔ آپ پیش کر رہے ہیں نا، ابھی یہ بھی نہیں ابھی تو خود مان رہا ہے، ہے۔ دکھا ابھی دیں، آپ لگا نے دیں، خود مانا، لگا آپ نے دیں، خود لگا مانا۔ دیں، انت منی لگا دیں۔ بمنزلت وڈا اولادی، پتر کہاں لکھا ہے؟ وڈا پتر کہاں لکھا ہے؟ وڈا پتر کہاں لکھا ہے؟ بھائی یہ پنجابی میں یہی ترجمہ ہے، تسی سڈا وڈا پتر ہے۔ پنجابی کو چھوڑ دیں، ہاں تو پھر کس میں ترجمہ وڈا بتاؤ؟ پتر مطلب بڑا بیٹا، بڑا بیٹا، بڑا بیٹا۔ تو یہ دکھا دیں بڑا کہاں ایک لکھا ہوا ہی ہے ہے بڑا نا، بیٹا ہے؟ دوسرا ہے تو دکھا دیں۔ دکھاؤ، ایک ہی ہے، بڑا ہے نا، اگر ایک ہی تو بڑا ہے، بڑا بیٹا ہے، چھوٹے چھوٹے آپ بن جاتے ہیں الگ بات ہے۔ بھائی سڈا وڈا پتر، یہ ظلم نہ کریں پیر صاحب، یہ ظلم نہ کریں۔ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کر سکتا ہے نا اللہ تعالیٰ، جنت ہے ہی قدموں کے نیچے ہو سکتی ہے نا، ہے نہیں، تو سب ہے کچھ ہو نہیں، سکتا ہے، قدموں والی پھر سب بات کچھ بھی ہو نہیں سکتا ہے، ہے۔ قدموں والی بات بھی غلط ہے، منسوب ہے نبی کی طرف سے، 70 ماہوں والا بھی منسوب ہے، منسوب بات ہے۔ اپنے لیے تو ہاں، اپنے لیے تو ساری تعویلیں، اپنے لیے تو آپ سب نہیں، کچھ کر لیں گے، ہمارے منسوخ لیے بھی اس کر میں لیں گے، کیا ہے، منسوخ بھی کر لیں گے، ہمارے لیے کون منسوخ سی بھی کر ایسی لیں بات گے۔ ہے؟ ہم اس بات کو مانتے ہیں جو صادق المصدوق تک پہنچ جائے، نہ کہ مرزا جی نے کہا بس ہم مان لیں، وہ مجھے وہی ہوندا پیا 2 پل ٹوٹ جائیں گے، شیطان تسبیحان 1 2 3 آئی لو یو، یہ کون سا ہے؟ نادر شاہ کہاں چلا گیا؟ یہ کیا ہے؟ الف لام نادر میم، شاہ الف لام میم حامیم، الف لام الف میم لام میم، حامیم حامیم، کاف نون چیلنج کر دیا یاسین۔ گیا۔ وہ کچھ کہتے ہیں آپ کہ کو وہ بھی 7 ہے، تھے اور 8واں ان کا کتا، تمام کچھ کہتے مرزائیوں کو بھی تھے یہ وہ چیلنج ہے، 7واں ان کا الف کتا، لام میم، یہ الف سے کچھ لے کہتے کر ہیں یا 5 تک، تھے وہ چھٹا، یہ قرآن کچھ کہتے ہیں مجید 5 تھے وہ اللہ چھٹا پاک ان نے کا اتارا، کتا، انہی الفاظوں لے کچھ کر کہتے آپ ہیں ایک آیت اتار دو، یہ کچھ چیلنج ہے، کہتے یہ ہیں وہ چیلنج ہے۔ 5 تھے 7واں ان کا کتا، جب لیکن وہ ادھر مڑتے تھے 2 تو پل ٹوٹ گئے، جب وہ ادھر مڑتے تو شیطان سورج کی تسبیحان، کرنیں ادھر آتی چلا تھی، گیا، نادر شاہ جب وہ کہاں ادھر چلا مڑتے گیا، تھے، مجھے کیا جب وہ معلوم ادھر کہاں مڑتے چلا گیا؟ وہ کہتے کچھ کہتے تھے وہ 7 تھے 8واں ان کا کتا، کچھ کہتے تھے وہ 9 تھے 10واں ان کا کتا، کچھ جب وہ کروٹ لیتے تھے سورج ادھر آ جاتا تھا، جب وہ کروٹ لیتے تھے سورج ادھر چلا جاتا تھا، یہ سب بھی تو قرآن میں ہے نا، اس کو بھی مان لیں آپ۔ بالکل، ہاں بالکل مانتا ہوں، ایسا ہی ہے، قرآن میں جو ہے ویسا ہی 300 سال سے کم و بیش کچھ اوپر وہ زندہ رہے، ہاں، تو اس میں کون سی آپ کو پریشانی ہے؟ تو اس میں کیوں کون سی پریشانی ہے آپ کو جو حضرت مرزا صاحب پہ الہام ہوئے؟ وہ ملحد کا قول ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، وہ ہوگا کوئی ملحد نے لاہور میں کہہ دیا کتا کہ جو میرا کر رہا بیٹا ہوگا، ہے۔ جی، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، ولم تکو لاہور صاحبہ، میں کوئی کتا اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، لاہور کوئی میں جوڑ کوئی کتا نہیں۔ ہوگا جو مر رہا ہوگا؟ لاہور میں کتا ہے، کتے تو ہر جگہ گھومتے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ یکتا ہے، احد، قل هو اللہ احد، اللہ یکتا ہے، ایک نہیں، یکتا، یکتا، قل کہہ دیجئے اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ پھر وہ 70 ماہ کیسے بن گیا؟ وہ اگر وہ یکتا ہے، وہ بے شک یکتا ہے اللہ تعالیٰ، قل هو اللہ احد، نہیں ہے، وہ 70 ہے ماہوں نہیں، سے زیادہ پیار کیوں کرنے لگ گیا؟ بھائی ہے نہیں وہ بات، وہ آپ نے بنا دی تو میں کیا ماں کر بن سکتا ہوں؟ سکتا ہے، پتر نہیں بن سکتا، اپنا بھائی پتر جان وہ ہے ہی نہیں، اپنا پتر نہیں بنا سکتا، لیکن ماں بن سکتا ہے، 70 ماہ بن سکتا ہے۔ یہ بھی آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ وہ بات تو ہے نہیں، 70 مائیں ہیں، یہ تو کہا نہیں، یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ ایک انسان سے پیار کرتا، ماں ہے اپنے بچے سے پیار کرتا ہے، 70 ماؤں کی پیار کرنا محبت، تو انسان کی صفت ہوتی ہے، ایک پیار منٹ سن کرنا تو لیجیے، انسان کی صفت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پیار کرنا تو بیٹا انسان سن کی لیجیے، صفت ہوتی ہے، اللہ کی کیسے ہو سکتی ہے؟ بیٹا سن لیجیے، وہ سرے سے ہے ہی نہیں نا، وہ بات ہے ہی نہیں، لیکن اگر پھر بھی آپ نے بات کی اس کو سمجھو، اس میں یہ ہے کہ ماں ہے اپنے بچے سے تو پیار کرتی ہیں بہت سارے، ہے کہ نہیں؟ سب کرتے ہیں مائیں، اب 70 ماؤں کی محبت کو ایک جگہ کیا جائے، اس سے بھی بڑھ کر اللہ پاک اپنے انسان اپنے مخلوق سے پیار کرتا ہے، اس سے بھی بڑھ کر، لیکن یہ حدیث ثابت نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، سمجھ رہے؟ انت منی بمنزلت اولادی، تو سڈا وڈا موٹا پتر ہے، یہ کہاں تک درست ہوگا؟ اس کی بات تو بتا دیجئے، جبکہ اللہ پیار یکتا ہے، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ پیار صَاحِبٌ، کرنا انسان کی فطرت ہے، پیار کرنا انسان کی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی پیار کیسے کر رہا ہے بھائی؟ اللہ پیار کرنا تو انسان کی فطرت ہے۔ انت منی بمنزلت اولادی، تو تن تنہا میرا وڈا پتر ہے،
कहां तक दुरुस्त होगा जबकि अल्लाह पाक के कोई जोरू नहीं, कोई बेटा नहीं। बोलो, अल्लाह पाक कह दे कि मेरा कोई पुत्र नहीं, मेरा कोई जोरू नहीं, मैं यकता हूं, सारे मखलूक हैं, मैं इनका खालिक हूं, और आप ये कहें अल्लाह ताला प्यार दे नाल मेरा बड़ा मोटा गर्दन देख लिया था और मुझे अपना बड़ा पुत्र मान लिया था। क्या गर्दन अल्लाह देखी ताला थी? बड़ी कह रहा है, गर्दन देखी थी? बड़ी गर्दन देखी थी, अल्लाह गर्दन बड़ा था। अल्लाह ताला कह रहा है, अल्लाह ताला कह जब अल्लाह ने कह दिया दोनों हाथों से बनाते तो दोनों हाथों से बनाया। अल्लाह ने कहा ना, अल्लाह ताला ने जब अल्लाह ताला ने आजम मिर्जा साहब से प्यार का फिराए अल्लाह ने कहा ना, अल्लाह ताला ने जब अल्लाह ताला ने आजम मिर्जा साहब से प्यार का इजहार कर लिया, तो आपको क्यों एतराज हो रहा है? आपको क्यों मिर्च लग रही अल्लाह है? पाक ने अल्लाह ताला कहा ने प्यार मैं से यकता प्यार का इजहार हूं, किया। मेरा कोई बेटा नहीं, मेरा कोई जो है जोरू नहीं, मेरा कोई हमसर नहीं, मेरा कोई मिसाल नहीं। तो मिर्जा जी के किस चीज को देखा मुझे बताइए? सर मोटा था, गर्दन अल्लाह के मोटी हाथ थी, कैसे आ गए? किस चीज को देखा? किस चीज को देखा? अल्लाह ये क्यों कह रहा है मुझे अपने बाप दादा की तरह याद करो? अल्लाह क्यों कह रहा है ये बात, मुझे अपने बाप दादा की तरह याद करो? बाप दादे को इंसान याद करता है, उनसे मोहब्बत होती है, तो आप जिस तरह अपने बाप दादों को याद करते हो, जिक्र करते हो, हाँ, अपने लिए सुन तो ले। अपने लिए 1000 अपने तावीलें लिए कर नहीं, लेंगे, अपने लिए मैं अपने आपको लिए समझा 1000 तावीलें कर लेंगे। हजरत मिर्जा वो साहब तो से अल्लाह आपको कह आग रहा है लगती ना, है। वो तो अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कह रहा है, कुरान में कह रहा है। इसीलिए तो कहता हूं कि आप लोग जो है कुरान को नहीं मानते, वो अल्लाह कह रहा है, हम मानते हैं। अपने लिए 1000 तावीलें कर लेंगे। हजरत मिर्जा साहब की तरह अगर अल्लाह ताला ने प्यार मोहब्बत का इजहार कर लिया, तो आपको इतनी आग लग रही है? आग तो हाँ नहीं लग रहील रही है। क्यों रिक्वेस्ट डाली है, क्या मसला है? पीर साहब को मसला है, जरा पीर साहब को मसला दुरुस्त कर ले। नहीं, तेरे को कुछ मसला है, तुमने रिक्वेस्ट डाली है, पहले भी रिक्वेस्ट डाली थी फिर नीचे गिरा दिया, क्या मसला है? हाँ, मैंने ये इबारत लगाई है आपके अल्लामा साहब की, तो इसमें पढ़ें और जरा इनको बताएं गुस्ताखी है या नहीं है। देखें, सुने, इस जगह पे जो है ना हजारों बातें मैं मिर्जा कादियानी की दे सकता, मेरी बात सुन ले, मुस्लिम खंजीर की थोड़ी दे सी बात सकता। सुन ले, थोड़ी सी बात सुन ले मेरे दोस्तों, थोड़ी सी बात सुन लें। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में साफ ऐलान कर दिया, बदीउस समावाति वल अर्द, बदीउस समावाति वल अर्द, जिसको मिर्जा जी नहीं मानते थे और ना कादियानी मानते हैं। आगे कहा, अन्ना यकूनु लहू वलद वलम तकुन लहू साहिबा, अकल के अंधो, अल्लाह का बेटा कैसे हो सकता है, उसका कोई जोरू ही नहीं। अकल के अंधो, अल्लाह के दो हाथ कैसे हो सकते हैं? आदम को कैसे बना सकता है? अकल के अंधो, अल्लाह के हाथ कैसे हो सकते हैं? जो बैत रिजवान में अपना हाथ रख सकता है। अकल के अंधो, अल्लाह के बाप दादा की तरह अल्लाह ताला कैसे हो सकता है, जिसको याद करने के लिए कह रहा है? अकल के अंधो, अल्लाह के हाथ कैसे हो सकते हैं? कंकरियां फेंक रहा है अल्लाह ताला। अकल के अंधो, सुन तो लो बेटा, सुन तो लो, रूहानी बेटा सुन लो। बदीउस समावाति वल अर्द, लोगो तुम्हारा खालिक और मालिक कौन है? वो जिसने आसमानों और जमीन बनाया, अदम महज से जमीन और आसमानों का बनाने वाला तुम्हारा रब है। अन्ना यकूनु लहू वलद, उसकी औलाद अकल कैसे के हो सकती है? अंधो, एक अकल मिनट, के अंधो, अल्लाह के सुन तो लो। दो हाथ कैसे हो सकते हैं, जिसे वो आदम बेटा को सुन बना रहा लो। है? अल्लाह के बेटा सुन अंधो, लो। अल्लाह का हाथ कैसे हो बेटा सुन सकता है, लो। जो बैत रिजवान पे रख रहा है? अल्लाह के बेटा अंधो, सुन अल्लाह के लो। हाथ कैसे हो सकते हैं? आंखों के अंधो, अल्लाह के हाथ कैसे हो सकते हैं, जो कि अल्लाह ताला कंकरियां फेंक रहा है? अकल के अंधो, अल्लाह ताला बाप दादा की तरह कैसे हो सकता है, जो याद करने के लिए कह रहा है उम्मत को? अकल के बेटा अंधो, सुन लो। अकल करो बेटा तुम। सुन लो। बेटा सुन लो ना, सुन लो। अन्ना यकूनु लहू वलद, अकल के अंधे, अल्लाह का बेटा कैसे हो सकता है? वलन तकुन लहू साहिबा, अकल के अंधे, अल्लाह 70 बात पाँव से ज्यादा होने कैसे दो। प्यार कर सकता है? कुरान मजीद बयान कर रहा हूं, सुनने तो दो, सुनने तो दो, ताकि शायद आपके अंदर जो है, जो वो इल्हाद है, वो खत्म हो जाए। अन्ना यकूनु लहू वलद, अल्लाह का बेटा कैसे मुमकिन है, हो सकता है? वलम तकुन लहू अल्लाह के साहिबा, हाथ कैसे मुमकिन हो सकते हैं? अल्लाह के हाथ कैसे मुमकिन हो सकते हैं? वो क्या हमने कहा कि अल्लाह के हाथ है? हमने कहा? वो अल्लाह कह रहा है, हम मानते हैं? अल्लाह की ना माने? बोलो, अल्लाह ये कह रहा है मेरा कोई बेटा अल्लाह ही तो नहीं, कह रहा मेरा है, कोई अल्लाह ही जोड़ तो नहीं। कह रहा है, अल्लाह तो कह रहा है कि अल्लाह कह रहा है हज़रत कि प्यार अपने मोहब्बत हाथों का से इज़हार कर रहा बनाया, है। अल्लाह ही कह रहा है मैंने मोहब्बत का कंकरियां इज़हार कर रहा है। फेंकी, अल्लाह ही कह रहा है कि मैंने अल्लाह- हाथ अपने उनके अल्लाह ही तो हाथों के मोहब्बत ऊपर का रख इज़हार दिया, कर रहा हम है। मानते हैं। अल्लाह ही तो लेकिन मोहब्बत का मिर्जा इज़हार जी, कर रहा है। जिसको अल्लाह ही तो आप मोहब्बत नबी का इज़हार कर मानते रहा हैं है। अपना, अल्लाह ही अल्लाह तो ने मोहब्बत का मिर्जा इज़हार जी कर का रहा है। कौन सा पार्ट देख लिया? गर्दन मोटी देख ली, इसलिए कहा कि बड़ा पुत्र है? बोलो। अल्लाह मोहब्बत का इज़हार कर रहा है, अल्लाह मोहब्बत का इज़हार कर रहा है। ऐसे बेसार के साथ आपको आग लग रही है तो हम क्या करें? अल्लाह इज़हार कर रहा है मोहब्बत का, भाई मुझे अल्लाह ताला इज़हार बताइए कर रहा कि है।
अल्लाह मोहब्बत का इजहार कर रहा है, मिर्जा जी की मोटे गर्दन को देखकर अल्लाह कहा था। मोहब्बत का इजहार कर रहा है, अल्लाह मोहब्बत का इजहार कर रहा है, अल्लाह मोहब्बत का इजहार कर रहा है, अल्लाह मोहब्बत का इजहार कर रहा है आज़म मिर्जा साहब के साथ। अंत मिन्नी बे मंजलत औलादी, तू मेरा मोटा बुड्ढा पुत्र है, बड़ा गर्दन तेरी मोटी है, जबकि मस्तानी साहब ना लड़ लें, थोड़ा बात को समझ लें, जी आराम से आप सुन लें, बात सुन लें। हाँ बात सुनो। बहुत देर से आपकी बात मैं सुन रहा हूँ, दोनों साहिबान की। वड्डा पुत्र की बात करो, वड्डा पुत्र पे। मैं बात तो सुन लो ना यार, दोनों प्यार 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 से बात बात अल्लाह लड़ाई के दो करने- हाथों पे करो, बात अल्लाह के भाई, दो हाथों पे करो, सुबह कर लो जिसने आदम यार। को बनाया, ओ जिसको भाई, आदम को बनाया। रहील साहब आपकी बात सुन रहे हैं, असकानी साहब की बात सुन रहे हैं, 2 मिनट देते हैं प्यारे, 2 मिनट। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ में लिखा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया है कि क्या आपने इनको कहा कि इला बना लो अल्लाह के अलावा? ये जो लोग हैं इनको अल्लाह ताला ने मना किया, जो लोग ये कहते हैं उनको अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में मना किया है। ये कुरान शरीफ मिर्जा साहब से बहुत पहले नाज़िल हो गया हुआ था, और अगर कोई मुसलमान है तो उसको पता है कि ये बात कहना गलत है। जो लोग, अल्लाह ताला ने फरमाया सूरत काफ में कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा उन लोगों को डरा दे, किन लोगों को? जो कहते हैं अल्लाह की औलाद है। इस काम के लिए भेजा है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सूरत काफ है, जिस अहमदी को ना पता हो वो जाके पढ़ ले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत में से एक मकसद ये भी है कि उन लोगों को डरा दे जो क्या कहते हैं अल्लाह का बेटा है, उनको डराना है रसूल अल्लाह ने। अब मिर्जा साहब इस कदर न डर हैं कि रसूल अल्लाह के डराने के बाद भी, चलो पहले तो पता नहीं होगा किसी को, अब अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में ये बात समझा दी, बता दी कि गलत बात है, ऐसी बात नहीं कहनी, इससे जमीन आसमान फट सकते हैं, इतनी बड़ी बात है। शाह मिर्जा साहब साहब ने मोहब्बत का कहा, इजहार कोई किया यार है, बात तो मोहब्बत का बात इजहार तो किया है, प्यारे- मोहब्बत का इजहार किया है। वो प्यारे मोहब्बत के बात बताने लगा ना, को अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से मोहब्बत नहीं, अल्लाह ताला को हजरत ईसा से कोई मोहब्बत नहीं थी। मोहब्बत का इजहार रसूलुल्लाह से कोई मोहब्बत नहीं थी, तो ये फालतू बात है ना कि मोहब्बत का इजहार किया है। क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला को कोई मोहब्बत नहीं थी? मिर्जा साहब से ज्यादा मोहब्बत होगी अचानक? अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि इनको कह दे कि अगर अल्लाह का बेटा कोई होता तो सबसे पहले मैं मानता। तो रसूलुल्लाह को तो ये कहा जा रहा है। मिर्जा साहब जो हैं उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, कुरान शरीफ के खिलाफ वो बात कही जिससे अल्लाह ताला मना कर रहा है कि ये कौल होता है, फिर अमल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, कौल कहने की बात हो रही है कि ये बात आपने कहनी नहीं है। मना किया अल्लाह ताला ने कि ये बात नहीं कहनी आपने, ये बड़ी बात है, बड़ी भारी बात है, आसमान फट सकता है, क़यामत आ सकती है इस बात से। तो इस बात को समझ ले कि ये सारी चीज बयान होने के बाद, चलो कोई बंदा अगर ईसाई जो है वो पहले कर रहा था कुरान, जब अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में ये बात खोल दी, उसके बाद जो ये बंदा काम कर रहा है वो सरी तौर पर अल्लाह का, कुरान का, रसूलुल्लाह का मुनकर है, जो ये कहे कि मुझे अल्लाह ताला ने कहा कि मैं अल्लाह का बेटा हूँ। क्योंकि इस बात से अल्लाह ताला ने, या कुरान शरीफ गलत है नौजुबिल्ला, या मिर्जा साहब गलत है। इसमें मुश्किल बात क्या है? सब जब 1 घंटे से इस पर बहस कर रहे हैं। अल्लाह ताला जब ये कह सकते हैं कि भाई मैंने आदम को दोनों हाथों से बनाया, अल्लाह ताला ये कह सकते हैं कि कंकरियां मैंने फेंकी, तुमने नहीं फेंकी। अल्लाह बेहतर रिजवान में अपना हाथ रख सकते हैं मुसलमानों के हाथों पर। तो अल्लाह ताला आदम मिर्जा साहब के साथ अल्लाह ताला ने मोहब्बत का इजहार कर लिया, तो इसमें इनको एतराज़ क्या है? एतराज़ ये है कि इनके साथ नहीं किया अल्लाह ने, इनके उलमा के साथ नहीं किया, आदम मिर्जा साहब के साथ किया, ये एतराज़ है। 140 साल से सड़ के इनका ये हाल हो गया है। अब हमारा क्या कसूर है? अल्लाह ताला ने अगर आदम मिर्जा साहब के साथ मोहब्बत का इजहार किया, ये कहते हैं सुलभी बेटा नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा थोड़ी अकीदा है हमारा। आदम मिर्जा साहब के साथ मोहब्बत का इजहार किया गया बस। रईस साहब वही रिकॉर्डिंग आप चला देते हैं, थोड़ा सड्डी भी सुन लो, थोड़ा सड्डी भी सुन एक लो। मिनट इसका भी एक बार मैं आखिरी कर लूं, फिर आप कीजिएगा। बड़ी मोटी गाल याद आ गई है। रईल साहब आप वही रटी रटाई बातें कर रहे हैं मेरे दोस्त। बात ये है कि जब अल्लाह ताला ने कैटेगोरिकली बड़ी सख्ती से ये बात मना कर दी कुरान शरीफ में, जिस बात का अल्लाह हुक्म देता है वो हमने करना है, जिससे रोकता है उससे रुक जाना है। जो अल्लाह और उसका रसूल दे वो ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। अल्लाह और उसके रसूल ने हमें, अल्लाह ताला ने ज़रिया रसूल अल्लाह बताया है कि बैत रिज़वान में तुम लोगों पर मेरा हाथ था, ले लिया अल्लाह ने, दिया हमने ले लिया।
अल्लाह ताला ने कहा कि ये बात नहीं कहनी कि अल्लाह का कोई औलाद है, हमने मान लिया। मिर्जा साहब कुरान शरीफ के मुनकर हो गए, उन्होंने कहा नहीं जी कुरान शरीफ में हमें जो मर्जी लिखा हुआ है मैं अपनी मर्जी करनी है, खिलाफ कुरान, खिलाफ खुदा, खिलाफ रसूल बात करनी है। इतनी बात है रहील साहब, इसमें आप किस चीज की बहस कर रहे हो मेरे दोस्त? बात जारी रखें, मैं सुन रहा हूँ। कुरान और हदीस के मुआरिफ जितने हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम पे खोले गए, किसी रुज़ी रूपे नहीं खोले गए, तो हम तो वही बात मानेंगे ना जो हज़रत मिर्ज़ा साहब ने हमें बताई है। अच्छा, आप सुन लीजिए थोड़ी सी। तो फिर वही बातें रही, मिर्जा साहब पे क्या मारफ खोले गए हैं? मिर्जा साहब ने झूठी बातें बयान अल्लाह का की वड्डा हैं। पुत्र है, ये खोला गया अल्लाह का पुत्र नहीं, है। मैं बता, अच्छा जो वड्डे की बात आप कर रहे हैं ना इसका, नहीं भाई, वो भी लिखा हुआ है, भारत के अंदर लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने चाहा कि उनसे बढ़कर, क्योंकि वो जो बच्चा बता रहे हैं उससे बढ़कर बच्चा बताया जाए, तो बड्डा पुत्र हो गया वहां। हाँ, वो लिखा हुआ भी। मैं जानता हूँ। एक बात होगी, दूसरी बात ये है कि मिर्जा साहब पर मुआरफ इस अच्छा, कदर खुल गए थे कुरान शरीफ। जी जी, मैं एक से रहील बुटवा, मुझे एक मोटी गाली देनी है मिर्जा जी को, मुझे इजाजत दे दीजिए आपकी इजाजत के बाद। मोटी मोटी, बड़ी मोटी इजाजत है? बिल्कुल इजाजत नहीं है, बिल्कुल इजाजत नहीं, बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। ठीक है, नहीं देता फिर ठीक है, सही साहब बात करें। अगर मिर्जा साहब को आप गाली देंगे तो फिर मैं सीरत सनाई खोल के रख दूंगा यहाँ पर, सीरत सनाई पढ़ना शुरू करूंगा फिर मैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जासकानी साहब, अगर आपके इतने बड़े आलम होके ये बात कर रहे हैं तो जिनकी आप सलाह कर रहे हो कैसे होंगे ये बता। ओ भाई देखे, मैं अपने बिटवा से इजाजत मांग रहा हूँ, इजाजत। अगर इजाजत देते हैं, बड़ी मोटी गाली जो है मुझे आंदा पे आ, मैं उस वक्त निकालना चाहता था, लेकिन बिटवा ने रोक लिया, मैं रुक जाता हूँ, इसमें क्या है? इजाजत को अच्छे काम की भी ली जा सकती है ना, गालियों की इजाजत तो नहीं ली इधर। नहीं, मौके महल के हिसाब से वो अच्छी थी। साहब को अच्छे काम के लिए इजाजत मांगी, गालियों के लिए कौन इजाजत मांगता है? ये तो किसी बेवकूफ आदमी। भाई फिर जायजा देख ले अपना जो कौम का हाल हो गया है। मोहतरम मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं मलकल मुल्क का दोस्त आयतुल्लाह पीरजाद आसकानी अपने होशो हवास में एक मोटी गाली देना चाहता हूँ मिर्जा जी को, इजाजत के बाद अपने बेटवा से, बस। अगर इजाजत ही नहीं देता तो देता ही नहीं, बस इतनी बात है। गाली पुक गई। मैं तो गाली भी नहीं दूंगा, सिर्फ सीरत सनाई पढ़ के सुनाऊंगा आपको। मैं तो गाली भी नहीं दूंगा, सिर्फ सीरत सनाई पढ़ के बस सुनाऊंगा, और ऐसी आग लगेगी ऊपर से नीचे आपको पीर साहब, ऐसी आग लगेगी कि आपके कानों से धुआं निकलेगा। मुझे तो कानी साहब की बात सुन के और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आ गई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था आखिरी ज़माने के जो मौलवी हैं आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे, अवाम जो है इनसे रहनुमाई के लिए जाएगी और इनको बंदर रसूल पाएगी। ये बात सुन के मुझे वो नबी कादियान से निकली है, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये कादियान से निकला हुआ है जी। जिस तरह कादियान में एक वड्डा पुत्र पैदा हो गया था, ऐसे वड्डे पुत्रों ने ये बातें मंसूब की। ये नहीं है, कोई ऐसी हदीस नहीं है नबी की तरफ। अच्छा, मुझे इजाजत दे दो, एक वड्डी गाली देनी है मैंने मिर्जा जी को आपकी इजाजत के बाद। जो मेरी बात सुनो इधर, असल में जो इजाजत दे दें, आप मुझे इजाजत दें, सीरत सनाई पढ़ना चाहता हूं मैं। सीरत सनाई में क्या है? सीरत सनाई का एक हवाला पढ़ना चाहता हूं। रहील, इजाजत है? क्या सीरत सनाई में क्या है, किसके बारे में? चलो, ये एम्बुलेंस आ गई है, पीस कानी की एम्बुलेंस भी आ गई अब। हाँ, आ गई। तू ठहर जरा एक मिनट। क्या है तू, किसके बारे में? तू मुल्क क्या है? एम्बुलेंस आ गई है, आ गई। हाँ, सीरत सनाई में क्या है बता जरा। ओहो, अब ये नया टॉपिक छेड़ देगा, देखो। इतनी मोटी अच्छी गाली याद आ गई है और आप रोक रहे हैं। साहब आप ऐसी बातें ना करें। सीरत सनाई पढ़ने की इजाजत दें, सीरत सनाई पढ़ना चाहता हूँ मैं। जो सीरत लिखी गई है, उनके जो सवाल हयात लिखी गई है, उनमें पढ़ना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दे दें। आप ना उतारे ना, रहील बिटवा ना उतारे। अगर कोई गलत बात करेगा मैं खुद उतार दूंगा, आप उतारे नहीं ना बिटवा, ऐसा ना करें। असल बात ये है कि जो नीचे लोग हैं ना, देखो इसमें इनकी सलाह करना वो देख रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात करे जिसमें नफरत ना फैले, ये तो नफरत फैलाने वाला। अच्छा, मिर्जा साहब ने गालियां क्यों निकाली थी अहमद, एक बात बता। मिर्जा साहब ने गालियां क्यों निकाली थी? गाली नहीं, आपको निकाली। आप देख ले, किसी को निकाली है कि नहीं? आप ड्रॉप करेंगे मैं करूं, ये सब ड्रॉप करेंगे मैं करूं, ये सब ड्रॉप करेंगे मैं करूं। मैं तो पूछ रहा हूं मिर्जा साहब ने गालियां क्यों नहीं है, आपको गलत बात की नहीं है ना मुझे। मिर्जा साहब ने गालियां निकाली, मैं सिर्फ इतना पूछा। मैं ये कह रहा आपको गाली निकाल ली है।
मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ उन्होंने निकाली क्यों है? भी दिखा दे कहाँ अब मैं गाली आपको निकाली है सही उन्होंने। बुखारी से दिखाने लगा हूँ। सही बुखारी एक छोड़े मिनट, जैसा खामोश हो जाए इब्ने आदम, मैं आपको सही बुखारी से दिखाने लगा हूँ। नबी करीम अच्छा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक तोजा के बारे में क्या कहा था, सुन ले मेरी बात, रहील मुल्हिद सुन ले। है, रहील मुल्हिद है। सुन ले रहील- नहीं नहीं भाई, मैं मुल्हिद अल्हम्दुलिल्लाह है, अहमदी मुझे मुस्लिम हूँ, मैं अहमदी मुस्लिम हूँ भाई, अहमदी भाई। मुस्लिम हूँ, तू अहमदी मुस्लिम हूँ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अहमदी मुस्लिम हूँ। ये आमदी काफिर हो? अच्छा 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 अच्छा, क्या आमदी मुल्हिद हो? अहमदी भाई, मुस्लिम लोगों हूँ, की सलाह के ये इधर अहमदी कुफर मुस्लिम वगैरह हूँ के फतवे ना लगाएं। मुझे ये बताओ, मिर्जा साहब ने, मैं इसे इतना सा सवाल, आप नाराज क्यों होते हैं ना भाई, नाराज ना हो। देखिए पाकिस्तान के उलमा ने आपके एक टीम को बुलाया, वो भी पार्लियामेंट में, 14 दिन तक उनको इजाजत दी कि अपने आप को कहीं से कहीं भी इस्लाम का कोई भी नमक और रमक बाकी है आपके अंदर तो आपको हम मानेंगे। इब्ने आदम, अब इब्ने आदम आएगा ना, अब मैं अब्बासी को भी लूंगा ऊपर, इब्ने आदम को आपने ऊपर लिया, मैं अब्बासी को भी ऊपर लूंगा। अब्बासी को अगर लोगे मुझे उतार दो, मुझे कोई मुश्किल नहीं है, मुझे उतार दो, ले लो, उससे बात कर लो, कोई इब्ने बात आदम नहीं। भी तो मैं नाराज क्यों हो इब्ने जाऊं? इब्ने आदम भी तो मुझे इंसान मुल्हिद कह है, रहा है। काफिर काफिर है, देखो मुल्हिद मुल्हिद को लेगा, इब्ने आप देख लें, मुल्हिद को आप लेगा। देख लें, आप देख लें, आप देख लें, अच्छा, मिर्जा पीर साहब साहब की देख डेट लें ऑफ की बर्थ बात तो है। बता दो। ओ भाई देखें, मिर्जा साहब की वाह, डेट ऑफ बर्थ तो बता दो। आप पीर साहब भले देख लें किसी आप। को भी ले लें, मुझे कहें अस्कानी साहब आप थोड़ा नीचे बैठे, मैं पिलाने बंदे को ले रहा हूं, बस मुझे नाराज भी नहीं हो जाऊंगा, ये तो अच्छी बात है। आप अगर उनको लेना चाहते हैं ले लीजिए, मेरी तरफ से इजाजत है। आप मुझे खामोश नीचे तो करा सकते हैं ना, आप उनको खामोश तो करा सकते हैं, मुझे फतवा लगा रहे हैं, मुझे फतवा लगा रहे हैं, अच्छा, रहीम मिर्जा साहब की की डेट ऑफ बर्थ बता ये दो। चलो तारीख फतवा पैदाइश बता हम दो। नहीं लगा रहे, ये फतवा अजल से है आप पे, अजल, हामान, फिरौन, शद्दाद, अबू लहब, उन पे फतवा है ये नहीं, आप उन्हीं के जो है नस्ल से हैं भाई, मिर्जा जी के मानने वाले। नहीं, अब जो देखो अजल- इसमें क्या गलत बात है? जायज कानी साहब जो इनकार करे वो मानने वाला है कि जो इधर मान ले वो है काफिर, इसमें ये बता दे। हम भाईजान तो नबी की मुसलमान सलाह कज़ाब से- जो है, देखो मुसलमान कज़ाब जो था वो असल क्या में कहते हैं, मुसलमान था। भाई जी मेरी बात सुनो, देखो ये टॉपिक तो हमने मैं सिर्फ कहीं और मेरे सवाल का लगाया, जवाब दे दो। आप- मुसलमान कज़ाब जो है मुसलमान था, उसमें मुसलमान वाले काम कौन से थे? तो फिर इधर कौन से थे? बड़े इब्ने पुत्र आदम ने बात- कौन बड़े पुत्र ने कौन से काम किए? बड़े पुत्र इब्ने आदम बात ये है कि देखो अवाम को देखो इंतशार में ना देखो डालो, जो बिग सन है, प्यार जो मोहब्बत बड़ा की पुत्र जो है, बात उसके कौन से काम थे? इंसानियत की बात है वो करें, जो टॉपिक लगे इस पे बात करें। तो टॉपिक आज पे ही है ना, तक देखो आपको ना मिर्जा साहब मुसलमान क्यों के याद अच्छे आते हैं? काम मुझे थे, समझ ना नहीं बड़े आती, पुत्र क्यों के इसके अच्छे पीछे काम थे। छुपते हो? मैं तो पूछ रहा हूँ ना, देखो मुझे बताओ कि मुसलमान को मुसलमान इसका मानते मतलब हो, है कि तुमने वो कहा कि बासी उसके जो कौन से बरात काम थे लगा अच्छे? के आप लोगों तो की वड्डे ने मंजी केड़े ठोक रहा है, चंगे ठीक सन? ठोक रहा है ना? नहीं बस इधर जो बासी बरात लगा के आप लोगों की मंजी ठोक रहा है कि वो ठीक कर रहा है? नहीं, वो तो मुल्हिद है ना, तो तुम लोग भी मुल्हिद हो, तो खुश हो एक खुदा दूसरे का के साथ। वास्ता है इंतशार ना फैलाएं यार, अवाम की सलाह करें। तो मिर्जा देख साहब लो, ने इंतशार जो क्यों हालात फैलाया? जा रहे हैं, गालियां क्यों निकालनी है मिर्जा साहब ने लोगों को? और भाई जी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इधर बदतमीजी से करेगा तो उसको क्या होगा? उसको क्या कहें? हाजी साहब कहें वो? तो भी ये तो मान रहे हैं ना कि उन्होंने गालियां नहीं, ये निकाली। बात नहीं जो नबी ये सल्लल्लाहु मानते अलैहि हैं ना? वसल्लम पे बतान लगा रहे थे। नहीं नहीं, अभी आप मान गए मिर्जा साहब ने नहीं, गालियां गालियां निकाली नहीं हैं। निकाली उन्होंने। देखे जो बात कर रहे हैं, जो नबी क्या सल्लल्लाहु अलैहि किया? वसल्लम पे बतान लगा रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, जी, क्या वो उन्होंने इंसानियत थी? लेकिन गालियां निकाली ना उन्होंने। फिर वही बात, गालियां निकाली। तो मुझे गालियां निकाली। हाँ या ना में जवाब दे दो। नहीं, भाई मैं जो सही नबी बुखारी से सल्लल्लाहु दिखा अलैहि दूं, मैं सही बुखारी से दिखाने लगा हूँ, सुने, मैं सही बुखारी से दिखाने लगा हूँ, मैं सही नबी बड़ी करीम दिखा दूं, सल्लल्लाहु मैं अलैहि सही वसल्लम बड़ी ने, दिखा बच्चे को दूं। नाचवा मैं मिर्जा सही साहब ने बुखारी गालियां दिखाने लगा हूँ, निकाली कि नबी नहीं? करीम सल्लल्लाहु अलैहि मिर्जा वसल्लम साहब ने ने गालियां अपनी एक निकाली रोजा कि को नहीं? क्या कहा, अपनी मुझे एक ये बताओ, अपनी एक मिर्जा रोजा साहब को क्या कहा? मिर्जा साहब ने सही बुखारी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक रोजा को क्या कहा, मैं पेश करने लगा हूँ, ऊपर कहना ही गाली है या नहीं है? पेश करूँ? अच्छा रहील बात सुन रहील। बच्चे का नाचवा आ गया। ये अकबर खान साहब आई लव यू, अकबर खान साहब आई लव यू, अच्छा अच्छा अकबर मेरी खान साहब आई लव बात यू। सुन, अच्छा मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। चल नहीं, ये पहले मेरी तूने बात सुनो, I love you अमन too। वजीर की तस्वीर लगाई है इधर,
لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے تجھ سے کہ پیر اسکانی صاحب کو چھوڑ دینا، ایک گھر تو ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے، ان کو بدنام نہ کروانا پلیز۔ اکبر صاحب وہ امن نذیر نے مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ آئین گائن کیا ہے، اس لیے یہ اس کو غصہ چڑھ رہا ہے، یہ نا اس کو کوئی مسئلہ ہے، یہ نا ٹھمکے بہت اچھے مارتا ہے، یہ نا نرگس کا بیٹا ہے، اور یہ ادھر دیکھنا کیسے کیسے ڈانس کرے گا۔ ابن آدم آپ کو کیسے پتہ چلا؟ پتہ نہیں ہے جو اس کے ٹھمکے نہیں دیکھے، اس کے ٹھمکے نہیں دیکھے احمد ایک منٹ لیکن آپ کو کیسے پتا ہوا ہے یہ بتا دیں۔ میں نے اس کے ٹھمکے دیکھے ہیں نا، یا تو آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، میں نے اس تو لیے آپ ٹھمکے کہہ رہے ہو۔ دیکھے ہیں، یہ نرگس کا بچہ ہے اصلی، پیر اسکانی صاحب آپ موجود ہیں؟ یہ وہ جو نرگس نے جو باہر پھینک گئی تھی نا، ہاں پیر اسکانی صاحب موجود پیر ہے، صاحب موجود ہے۔ پیر صاحب سن لیا، پیر صاحب سن لیا، اب ٹھیک ہے پیر صاحب، اب ٹھیک ہے، دوبارہ اٹھاؤں اس کو پیر صاحب، پیر صاحب میں دوبارہ نے اٹھاؤں نہیں اس سنا کو، بھائی، میں نے نہیں سنا بیٹا، پیر صاحب اس کو دوبارہ اٹھاؤں پیر صاحب، میں نے نہیں سنا اس نے کیا کیا کہا۔ پیر صاحب آپ موجود ہیں؟ جی میں ہوں، میں زندہ ہوں بھائی۔ یہ ریل کیا بکواس کر رہا ہے؟ آپ اس کی بکواس کو سن رہے ہیں؟ پیر صاحب وہ مجھے ماں کی گلی دے کے چلا گیا، آپ اٹھاؤں دوبارہ، ہاں جی، رہید ملحد ہے، مرزائی ہے، مجھے ماں کی گلی دے کے چلا گیا، آپ نے خاموشی خاموش نہیں کرایا۔ شاہ شوٹر مجھے ماں کی گالی دے کے گیا ہے، مجھے ماں کی گالی دے کے جو گیا ہے وہ صحیح کر کے گیا ہے شاہ شوٹر۔ رحیل بات سن، آپ نے کہا کہ عامر نذیر نے اے آئی سے آپ کی آواز چینج کی ہے، اے آئی نہیں، دے آئی۔ عامر نذیر کو کیا ضرورت ہے آپ کی آواز چینج کرنے کی؟ یہ ذرا سوچو ذرا۔ ہم ادھر سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا ہاں ریل تو وہ حدیث پیش کر، نظر ہم تمہیں جواب دیتے ہیں، پیش کرو ذرا۔ بھائی دیکھیں، رحیل ایک عامر نذیر کو یہ ضرورت ہے، عامر نذیر کو ضرورت یہ تھی کیونکہ میں نے اس کو ایکسپوز کیا تھا، میں نے اس کا اسلام اس کے منہ پہ دے مارا تھا، میں نے اس کا اسلام اس کے منہ پہ دے مارا تھا، اس لیے اس نے مجھ سے یہ بدلہ لیا۔ اچھا تم چلو نا، تم ذرا وہ حدیث سامنے لگاؤ، کون سی حدیث کے بارے میں بات کر رہے ہو ذرا بتاؤ۔ اچھا شارپ شوٹر یہ ٹاپک چینج کر رہا ہے، جو ٹاپک لگا ہوا ہے شارپ رحیل اس کی بیٹا، بات کر رہے رحیل ہیں۔ بیٹا میری بات سن لو، او رحیل، رحیل سن رہے ہو مجھے؟ رحیل بیٹوا، رحیل، جی بولے، میں سن رہا ہوں۔ اچھا میں جی بولے۔ تھوڑا سا مصروف ہونے والا ہوں 15-20 منٹ تک، اور اس کے بعد آؤں گا، یہی ہوں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، لیکن میوٹ ہوں، ٹھیک ہے؟ بات کریں آپ اچھے انداز میں بات کریں، اور اس بات کا لوگوں کو جواب دے دیں کہ مرزا جی وڈا پتر کیسے۔ جی میوٹ لگا لیں۔ یار اتار کیوں دیتا ہے رحیل تو؟ اس کو ٹھمکے یاد آئے تھے نا اصل میں۔ بات کر، مردوں کی طرح بات کر، اتارنے کا کیا شوٹر فائدہ یہ ہے؟ ماں بہنوں کی گالیاں دے گا، یہاں پر بیٹھ کے ماں بہنوں نہیں، کی گالی گالیاں کوئی نہیں دے گا تجھے، گالی کیوں دینی ہے تجھے؟ گالی نہیں دے گا تجھے، کوئی بھی گالی نہیں دے گا۔ وہ حدیث نکالنے والا تھا، وہ نکال کر لگاؤ۔ وہ لگا حدیث جو لگانے لگا تھا ابھی، پہلے تو سیرت نے سائن نکالا تھا، لگا حدیث۔ رحیل بٹوا نیچے مت اتارا میرا کر، پتر ملحد، لگا شاباش۔ بات کیا کر۔ یہ رحیل ٹاپک چینج کرنے آئے اور کچھ نہیں ان کے پاس۔ شاہی محلے نہیں، آس پاس رہنے والے ہمیں لگا حدیث، لگا حدیث دیکھنی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ نشئی نہ ہوئے تھے یار۔ اور رحیل نیچے مت اتارا کر، لوگوں کو ان سے بات کیا کر۔ یار اکبر خان صاحب، اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، عامر نذیر صاحب نے جو کیا نا میرے لیے، وہ اس لیے یہ کیا کہ ان کا دین مذہب اسلام میں نے ان کے منہ پہ دے مارا۔ ان کا مذہب یہ تھا کہ گالیاں دینی تھی اپنے مخالف کو، مطلب جو بھی دعویٰ کرے گا اس کو گالیاں دینی ہے، میری بات اب یہاں پہ میری ایک بات سن لیں۔ عامر نذیر سے ہماری بھی مخالفت ہے، عقیدے کی مخالفت ہے، یہ شارپ شوٹر سے بھی ہے، پیر اسکانی صاحب سے بھی ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی لوگ ہمیں نیچے نہیں اتارتے، ہم سے بات کرتے ہیں۔ تو بھی بات کر، نہ کہ تو گالیاں دینی شروع کر دے۔ بھئی ٹھیک ہے، اگر تیری عامر نذیر سے نہیں بنی، میں نے خود عامر نذیر کو گالیاں دی ہوئی ہیں، لیکن میں عامر نذیر کے پاس بیٹھتا ہوں، اس کو پتا کہ اس نے غصے میں دے دی تھی، میں نے اس کے ساتھ معذرت بھی کر لی، بات ختم ہو گئی۔
तो बात ये है कि बात किया कर, ना कि ये लोगों को रहेगी नीचे उतार दिया कर। अकबर खान साहब, यही तुमने तो माजरत कर लेती, तो वो अकबर रहेगी खान का भी साहब ये है कि वो आपसे भी तो माजरत कर ले, वो भी माजरत कर ले आगे से। हाँ, बात खत्म। क्या अमर नजीर के पास यकीन करें क्या मैं उससे माजरत कर माजरत कर लूंगा। वो तुमसे बात जरूर करेगा। मैंने अगर माजरत नहीं कर ली, नहीं, जिसने वो जे खान साहब, मैंने अगर उनसे माजरत कर ली, वो मुझे अपने साथ बिठाएगा। हाँ तो बैठ जाता ना, इसमें क्या ऐसे लोगों हर्ज के है? साथ कैसे बैठूं जो अजहर मिर्जा साहब को गालियां देते हैं? नहीं नहीं, तो देख उसके साथ बैठ के हजरत मिर्जा साहब की सच्चाई उसके ऊपर साबित कर, वो दलील दे, आप उसको दलील से जवाब दो, ना कि अगर आप इस तरह करोगे तो आप उसको तबलीग कैसे करोगे? बात तो ये है देखिए ना। अकबर खान साहब, आपसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है, आप हमारे घर के ही हैं। आपसे हमारा इख्तिलाफ है सिर्फ खिलाफत पर, आपसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। आप हमारे अपने फैमिली मेंबर है, फैमिली में भी इख्तिलाफ हो जाता है, फैमिली में भी इख्तिलाफ हो जाता है, तो फैमिली में भी इनसे इख्तिलाफ हो जाता है। इनसे अकबर खान देख, साहब, मेरी बात सुन, इनसे भी इख्तलाफ नहीं है। अगर ये मिर्जा साहब को नहीं मानते तो हमारा काम ये है कि रूहानी खजाइन से मिर्जा साहब की सच्चाई इनके आगे रखनी है, इनसे दलील से बात करनी है। अकबर डाकू, हाँ हाँ जी। चलो रहील, हम आपकी तबलीग सुनते हैं। आप सीरतुल महदी खोलें और हमें मिर्जा साहब की सीरत बताएं। सीरतुल मेहदी हमारे लिए उज्जत ही नहीं है। सीरतुल मेहदी अजहर मिर्जा साहब ने नहीं लिखी मिर्जा है, बशीर हमारे महमूद लिए साहब ने उज्जत पता है क्या नहीं। लिखा हमारे हुआ है? लिए नहीं, हमारे लिए ना तो वो सीरत इब्न हशाम उज्जत है, और ना मेरी सीरत बात इब्न तो खुलदून सुनो, उज्जत है, और ना सीरतुल पागल खुलदून उज्जत है। और पागल मिर्जा बशीर महमूद साहब ने क्या लिखा हुआ सीरतुल महदी के बारे में पता है? तुम मेरे लिए उज्जत सिर्फ और सिर्फ मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के इल्हाम और वही है। मेरे लिए उज्जत सिर्फ मसीह मऊद अच्छा, उनके अलैहिस्सलाम नाम की पे बात इल्हाम और करते हैं। वही है, बस अच्छा, और कोई उज्जत उनके नहीं है। नाम पे उन पे बात करते हैं। और पेट फट गया, इस इलाम का क्या? हाँ तो बीमार बहुत फट गया होगा, मारता है किसी सरकारी मुसलमान का पैर फट गया होगा। सीरत मेहदी पे आ गए हैं। पहले कुरान व हदीस से आते थे, अब ये सीरत मेहदी पे आ गए हैं। कुरान व हदीस से हारने के बाद अब सीरत मेहदी पे आ गए हैं। इनके मुनाजर कुरान हदीस से बात करते थे, ये सीरत मेहदी पे आ गया। इसका मतलब है कि शिकस्त खोरदा मन गया है शार्पशूटर। इनके जितने भी अपना क्या नाम है राही, इनके जितने भी मुनाजर रिकॉर्ड चेक कर ले, वो कुरान और हदीस से बात करते थे। ये सीरत मेहदी पे आ गया बेचारा, इसके लिए सीरत मेहदी आ गई है। इस बेचारे का ये हाल हो चुका है। देख लो इनका क्या हाल हो चुका है। कुरान और हदीस से भागने के बाद सीरत मेहदी पे आ गए, ये इनका हाल है जाहिल का। देखा है रही, उनके जितने भी मुनाजरे हुए बड़े बड़े जितने भी मुनाजरे लाइब्रेरी में मौजूद है, वो कुरान और हदीस से बात करते थे। उसके बाद हारने के बाद ये जनाब साहब सीरत मेहदी पे आ गए। ये इन लोगों का हाल है। सीरत मेहदी, सीरत मेहदी, सीरत मेहदी, और सीरत मेहदी, और सीरत मेहदी, और सीरत मेहदी, जाहिल इंसान, और सीरत मेहदी, और बेवकूफ हो। अपने बाप दादा की सुन्नत पे अमल करो। वो कुरान और हदीस से बात करते, तुम सीरत मेहदी पे आ गए। रहील इनकी शिकस्त है, कहीं देखो ना इसकी कितनी शिकस्त है। सीरत मेहदी पे तुम्हें कह रहा है सीरत मेहदी पे आ जाओ, फिर सीरत मेहदी पे क्यों आ जाए? कुरान हदीस से हार गए तो सीरत मेहदी। और भाई इनके जितने दादे परदादे थे कुरान हदीस से बात करते थे, इनके दादे परदादे कुरान हदीस से बात करते थे। ये कहता सीरत मेहदी, वो केड़ी सीरत मेहदी हो? सीरत मेहदी बेवकूफ इंसान है। तेरे दादे परदादे कुरान हदीस ना मुनाजरे करते सी। लाइब्रेरी में वो किताबें छुपी हुई हैं, जाके पढ़ लो, वहाँ पे पढ़ लो। कुरान हदीस से बात करते थे कि सीरत मेहदी का तो उस वक्त नामो निशान नहीं था। वो सीरत मेहदी का तो नामो निशान नहीं है। वो बेवकूफ इंसान। और सीरत मेहदी को समझना है तो पहले कुरान हदीस से समझो। वो बेवकूफ इंसान है। सीरत मेहदी, सीरत मेहदी, सीरत मेहदी। ओ भाई तुम्हारे बाप दादा को सीरत मेहदी का नहीं पता था? तुम्हारे बाप दादा को सीरत मेहदी का नहीं पता था? और तुम्हारे बाप दादा को सीरत मेहदी का नहीं पता था? कुरान और हदीस में हारने के बाद सीरत मेहदी पे आ गए। और सीरत मेहदी को समझोगे ना जब कुरान और हदीस को समझोगे। जाहिल इंसान, वो जाहिल इंसान है। कुरान और हदीस को पहले समझोगे तो सीरत मेहदी को समझोगे ना। जब सीरत मेहदी को मानते नहीं है तो सीरत मेहदी की क्या दलील दे रहे हो? इनके जितने भी मुनाजरे हुए हैं इनके चोटी के उलमा के, वो उनकी कुतुब जड़ी लाइब्रेरी में मौजूद है, वो कुरान और हदीस से बात करते थे। ये सीरत मेहदी पे आ गया, जाहिल तरीन इंसान। ये हारने की
और ये बताओ शिकस्त है, हार गया बेचारा, हार गया बेचारा, हार गया, हार गया, हार गया, हार गया, अब बताओ सीरत हार गया। देखो सीरत महदी पे आ गया, कुरान और हदीस में हारने के बाद सीरत महदी पे आ गया। मैं हैरान हूँ, इसमें अकल का इतना अंधा है। सीरत महदी तो उस वक्त समझो कि जब तुम्हें कुरान और हदीस समझ आएगी। बेवकूफ इंसान है। तुम्हारे पापा दरदादा जो थे वो सीरत महदी पे बात करते थे कि कुरान और हदीस से बात करते थे। वो बेवकूफ इंसान है, वो बेवकूफ जाहिल इंसान है। मुझे ये बता, तुम्हारे दादा परदादा कुरान और हदीस से बात करते थे कि सीरत महदी पे बात करते थे? वो अकल के अंधे, वो अकल के अंधे जाहिल है, वो जाला, जाहिल भी नहीं जालिया, वो जालिया, जालिया मुझे ये बता कि अब्दुल रऊफ साहब कैसे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कुरान और हदीस से बात करते थे रऊफ साहब, इनको 2 मिनट चुप कराएंगे। अब्दुल रऊफ साहब कैसे हैं? नंबर 16 सफा नंबर जी जी 55। चुप है, आप बात करें। अब्दुल रऊफ साहब आप बात करें। अब्दुल साहब आप बात करें। ये शार्प शूटर को म्यूट करो, शार्प शूटर को म्यूट करो। यार शार्प शूटर बात बचपन मेरी टट्टी मुकर्रर पैसे जलाल जमाल शार्प शूटर बात करने दो, शार्प शूटर बात करने दो, शार्प शूटर बात करने दो, अब्दुल रऊफ साहब को बात करने दो। उतारोगे तो ये बात करने देगा, इसको नीचे उतार दो। इसकी औकात 2 कौड़ी की है, ये बातें करता है बढ़ बढ़ के। कुत्ती का बच्चा है, इसको नीचे उतारो। बिल्कुल कुत्ती का बच्चा है वो, बिल्कुल इसको नीचे उतारोगे, नहीं तो मैं उतर जाता हूँ। 24 सफा 244। मैं नीचे उतर जाता हूँ अगर इसको नहीं उतारना। अब सुनो मेरी बात, तुमने ये ब्रांड लगाई है, तुम्हारा नाम राहील है, तुम्हारी बातों से ये लगता है कि तुम अहमदी हो, और जो लोग अहमदिया जमात के दुश्मन हैं उनको ऊपर बिठा के तमाशा लगाया हुआ है। तुम्हें पता है कि जो अहमदी मुसलमानों की ब्रांडें हैं उन पर ये सारे लोग बैन हैं, ये गटर के कीड़े हैं, गंदगी का ढेर है। तुम इनको ऊपर बिठा के तमाशा लगाते हो, किस चीज के तुम अहमदी हो भाई? अगर तुम अहमदी मुसलमान हो तो जो अहमदी मुसलमानों की ब्रांडें लगती हैं, स्टूडेंट भाई की ब्रांड है, जरीउल्लाह की ब्रांड है, इसी तरह दूसरे भाई हैं, उनकी ब्रांडों पे आओ, हमारे साथ मिल के तबलीग करो। ये जो गंदे लोग हैं, जो है ही जमात अहमदिया के दुश्मन हैं, उनको ऊपर उठाना और उनसे बहस करना मेरे ख्याल के मुताबिक ये बिल्कुल फजूल काम है जो तुम कर रहे हो। अल्लाह ताला, मैं दुआ करता हूं कि तुम्हें ये बातें समझने की तौफीक अता फरमाए। मैं पहली और आखिरी बार तुम्हारी ब्राड पे आया हूं, आइंदा कभी नहीं आऊंगा। बहुत शुक्रिया। लोगों को तबलीग कैसे करोगे अगर इनसे बात नहीं करोगे? तो अपनी ब्राडों पे तो आप माइक बंद कर देते हो इन लोगों का। इस तरह तो नहीं होती तबलीग। तबलीग तो होती है बराबरी पे। वो रहील सही कर रहा है, तबलीग कर रहा है यहाँ पे बैठ के। उधर आओ, उधर आप बोलने ही नहीं देते हो। एक लिहाज से ये बात, क्योंकि यहाँ पे अक्सर लोग वो आ रहे हैं जो गालीबाज हैं, जमात को गालियाँ देते हैं और जनाब से दलील सुनते ही नहीं हैं, तो इसलिए वो अब्दुल साहब की गाल बात जो है वो काफी अब्दुल साहब की गाल बिल्कुल सही है, इसलिए तो ये बात सही है बिल्कुल रही भाई। लेकिन ये बात जो कर रहे हैं ना अपना क्या अकबर खान साहब, ये भी गालीबाज हैं। जब से सरकारी मुसलमान में सारे गालीबाज हैं, मिर्जा महमूद और मिर्जा मसरूर गालीबाज नहीं है। इसलिए अपनी खिलाफत इजाद की हुई बात काफी हद तक बल्कि बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप कोशिश करें कि अहमदिया ब्रॉड पर भाई, मैं तो इसलिए आया हूँ कि वो चवल किस्म का बंदा जो गालीबाज था, वो गालियां दे रहा था, उसको जवाब देना था, दे दिया है। तो बाकी वो अब्दुल भाई की बात सही है बिल्कुल, क्योंकि ये गालीबाज लोग हैं। ये जाहिद अस्कानी साहब, ये जो अपना क्या आमन नज़ीर साहब, इनकी आपने गालियां सुनी हुई है ना।